Assalamu alaikum students, and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. The book which we are following is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation. It is the 5th edition of the book. The publisher of the book is Pearson Publishing, and the authors of this book are Sunil Chopra and Peter Mandel. I am Dr. Fahad Amjad. Let's start today's lecture. Today's lecture will cover the topics from chapter 6, which is designing global supply chain networks. Before starting today's lecture, let me give you a brief overview of what we have done so far in this chapter. Basically, there are 4 learning objectives of this chapter: 1, 2, 3, 4 factors. In the first learning objective, we have to identify the factors which affect the global sourcing decision. We also have to understand what are the different uncertainties or risk involved in designing a global supply chain. We also looked at the mitigation strategies within this chapter. Mitigation strategies, the strategies which are used to mitigate risk within the supply chain. So in the second point, we discussed what are uncertainties or risk within the supply chain, design of the supply chain network, and in the third learning objective, we discussed what are the strategies, mitigation strategies to control risk. In the last lecture, we were on this 4th point of the chapter, which is understanding the decision tree methodology. And before, in the last lecture, I gave you discussion of, I gave you the procedure of how to go about making a decision tree. If you remember, before discussing the topics of the decision tree, we discussed net present value, MPV. Okay, what is MPV? How we calculate it? If you could remember, the last slide of the last chapter was about the methodology कि जी आपने अगर decision tree analysis करना है, decision tree analysis क्यों किया जाता है? When there are uncertainties in the decision product, in the decision. जब आपके पास uncertainties हों, if there is any kind of risk involved, then we use this decision tree methodology. इसके प्रोसेस क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम इस मेथडोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड एंड द नंबर ऑफ टाइम एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स T over which the decision is to be evaluated. इसका पहला स्टेप है कि आपने डिसीजन पीरियड का जो टाइम विंडो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि जी कितने साल का डिसीजन हम ले रहे हैं और उसके अंदर इंडिविजुअल पीरियड्स कितने हैं. अगर 2 साल का डिसीजन है तो इंडिविजुअल पीरियड्स उसके अंदर हमें 1-1 साल के या मंथ के जितनी भी आपने उसकी रखनी है तो रखें. आइडेंटिफाई फैक्टर्स whose fluctuation will be considered. अब आपने ये फैक्टर्स बताने हैं जिनके अंदर अनसर्टेनिटी या जिनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है कि जी देयर इज सर्टन फ्लक्चुएशन, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन. तो वो आपने फैक्टर्स बताने हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन करनी है कि जी कितने, अगर इफ़ देयर इज एनी फ्लक्चुएशन तो कितने % फ्लक्चुएशन इज़ या कितने % अनसर्टेनिटी कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. फिर उसके बाद आपने अपना या अपनी कॉर्पोरेट का एक रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, या रेट ऑफ रिटर्न आपको पता होना चाहिए. मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, डिस्काउंट रेट, ये सारे के सारे एक ही लफ्ज़ हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के कि जी दैट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न. जो 5वां पॉइंट था, 5वां स्टेप था, यू रिप्रेजेंट द डिसीजन ट्री विद डिफाइंड स्टेट्स इन ईच पीरियड एज वेल एज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ कि जी आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है. और आज हम देखेंगे कि ये होती क्या है. और फिर हम
जो आखिरी पॉइंट था कि जी आपने डिसीजन ट्री को सॉल्व करना है फ्रॉम लास्ट, यानी कि जो डिसीजन है वो बैक, फ्रंट टू बैक लाना है, यानी कि अगर 0 टाइम पीरियड है, 0, 1, 2 2 साल का डिसीजन है, तो डिसीजन ट्री आप बनाएंगे 0 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, 2 पीरियड, 2 साल का डिसीजन है, तो पहले आपने डिसीजन ट्री को इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपने 2 को सॉल्व करना है, फिर 1 को सॉल्व करना है। तो यू हैव टू वर्क बैक टूवर्ड्स पीरियड 1 टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो आज हम देखते हैं कि जी हम किस तरीके से ये लगा सकते हैं डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी। डिसीजन ट्री मेथडोलॉजी हमने देख ली, अब हम इसको एक एग्जांपल के अंदर देखेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन मच मोर डिटेल। वही प्रॉब्लम जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी, ट्रिप लॉजिस्टिक्स की। ट्रिप लॉजिस्टिक्स को का बिजनेस है कि जी दे टेक द ऑर्डर एंड दे हैव टू स्टोर इट, वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं। अब उनके पास एक डिमांड आ रही है प्रोडक्ट्स की और उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना। उनका बेसिक बिजनेस ये है कि जी वो थर्ड पार्टी से इन्वेंट्री लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उस स्टोरेज के वो थर्ड पार्टी से पैसे लेते हैं। तो क्या डिफरेंट ऑप्शंस थे उनके पास, डिफरेंट ऑप्शंस इस प्रॉब्लम के अंदर। तो वही बेसिक प्रॉब्लम उनकी वही है कि जी दे हैव अ डिमांड, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उनको कुछ रेवेन्यूज चाहिए, उनकी कोई कॉस्ट्स हैं, वो सारी की सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पहले एग्जांपल वाले जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए वही हैं। अब हम देखते हैं कि जी अनसर्टेनिटी हम इसके अंदर किस तरह से डाल सकते हैं। इसके अंदर जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स है उनके पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो 3 काम कर सकते हैं। गेट ऑल देयर वेयर हाउसिंग स्पेस फ्रॉम द स्पॉट मार्केट एज नीडेड। दूसरा ऑप्शन उनके पास है साइन अ 3-year लीज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेयर हाउस स्पेस एंड गेट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। कि जी दूसरा केस ये है कि वो 3 साल की लीज साइन कर लें किसी फिक्स्ड क्वांटिटी की, और जब उन्हें एडिशनल वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वो स्पॉट मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। तो पहला तो ऑप्शन यही था ना कि जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो स्पॉट मार्केट से पूरी करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी वो 3 years फिक्स्ड अमाउंट की लीज साइन कर लें कि जी हमें हर साल इतनी चाहिए और आपने हमें इस रेट पे देनी है। उससे ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो स्पॉट मार्केट से इस कैपेसिटी को, इस जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा कर सकते हैं। अब ये तीसरा इधर ऑप्शन है साइन अ फ्लेक्सिबल लीज विद मिनिमम चार्जेस दैट अलाउ वेरिएबल यूजेज ऑफ वेयर हाउस स्पेस अप टू अ लिमिट विद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। अब तीसरा जो इनके पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल लीज का कि जी आप अपने जहाँ से आप वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ ले रहे हो उनके साथ आप एक लीज साइन कर लो फ्लेक्सिबल की कि जी फ्लेक्सिबल क्वांटिटी। इसके अंदर तो फिक्स्ड क्वांटिटी थी ना कि जी आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेयर हाउस स्पेस ले ली। तीसरे के अंदर फ्लेक्सिबल है कि जी मैं मिनिमम टू मैक्सिमम इतनी स्पेस मिनिमम और इतनी स्पेस मैक्सिमम के दरमियान में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल लीज है, उसके कुछ उन्होंने मिनिमम चार्जेस देने हैं टू यूटिलाइज दैट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल लीजिंग, और इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है इनको तो वो स्पॉट मार्केट से ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल लीज क्या है कि जी वो आपको बता दे, आप एक ख़ास चार्जेस देते हो एक विंडो ऑफ कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए कि जी मिनिमम कैपेसिटी हम इतनी यूज़ करेंगे और मैक्सिमम हम इतनी यूज़ कर सकते हैं, इसके दरमियान में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंडो ऑफ कैपेसिटी के लिए आपने फिक्स चार्जेस देने हैं और उस कैपेसिटी के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपकी यूज़ हो, अब मैक्सिमम से ज़्यादा आपकी जब यूज़ होगी तो वो हम स्पॉट मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो इन्होंने एक्सप्लोर करने हैं। डेटा वही पुराना है कि जी आपको 1000 स्क्वायर फुट ऑफ वेयर हाउस स्पेस रिक्वायर्ड है अगर आपने 1000 यूनिट्स ऑफ डिमांड को केटर फॉर करना है, या आप हर यूनिट ऑफ डिमांड को केटर करने के लिए आपको 1 फुट स्क्वायर की ज़रूरत है, 1 फुट स्क्वायर ऑफ
जो है ना वेयर हाउसिंग स्पेस, तो एक यूनिट ऑफ डिमांड को पूरा करने के लिए उनको 1 स्क्वायर फुट की ज़रूरत है वेयर हाउस की। उनकी अभी करंट डिमांड जो है दैट इज़ अबाउट 100,000 यूनिट्स पर ईयर। इस बिज़नेस को जितनी भी डिमांड या जितना भी बिज़नेस मिलता है एट दिस स्टेज, जो करंट उसके पास बिज़नेस है वो 100,000 यूनिट्स पर ईयर की है। अब इसके अंदर एडिशनल रिस्क या एडिशनल फ्लक्चुएशन आ रही है। Over the time period, at this time period, they have a demand of 100,000 units per year. मगर ये डिमांड बढ़ भी सकती है, ये डिमांड कम भी हो सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन का फैक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। डिमांड कैन ग्रो अप टू 20% with a probability of 0.5 and it can go down by 20% with a probability of 0.5। इसका मतलब है कि जी 20% जो है डिमांड 20% बढ़ भी सकती है, 20% कम भी हो सकती है। बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी है दोनों को मिला के, या तो वो बढ़ेगा या तो कम होगा। अब अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर कोई चीज़ सर्टन हो कि ये चीज़ होगी ही होगी तो 100% प्रोबेबिलिटी होती है। अब आपके पास ज़रा सा रिस्क है कि आई थिंक देयर इज़ 50% चांसेस कि ये चीज़ हो सकती है, तो फिर उसके अंदर आपको बताने पड़ते हैं डिफरेंट 50% चांसेस कि ये ऊपर जाएगी, 50% चांसेस ये नीचे आएगी। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जी डिमांड जो है वो 20% बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ने की जो इसकी इंक्रीज की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ अबाउट लेट्स से 50%, डिक्रीज होने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ अबाउट 30%, और स्टेइंग एट द सेम लेवल, इसी डिमांड जो इस वक्त है इसी लेवल पे रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी 50 + 3 इज़ 6, 7, 8, तो बाकी 20% जो है वो स्टेइंग एट द सेम लेवल। तो इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो दैट विल बी 100%। इन तीनों आउटकम में से कोई ना कोई आउटकम होनी है, क्योंकि इन तीनों को मिला के 100% प्रोबेबिलिटी बन जाती है, कोई ना कोई आउटकम होगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है इट इज़ मच मोर सिंपलर। इसके अंदर 20% प्रोबेबिलिटी है कि जी 20% इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी है, इंक्रीज की 50% प्रोबेबिलिटी है, और 20% डिक्रीज की हो सकती है डिमांड, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है। तो इन दोनों में से कम या ज़्यादा होगा, आउटकम कोई ना कोई निकलेगी, डिमांड या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो बढ़े? 50%। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो कम हो? दैट इज अबाउट 50%। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। लीज अगर आप लेते हो तो आपको हर स्क्वायर फुट जो है वो $1 पर ईयर के हिसाब से पड़ता है। अगर आप स्पॉट मार्केट में लेते हो तो वो 1.20 पर स्क्वायर फुट पर ईयर पड़ता है। स्पॉट प्राइसेस जो हैं, क्या उनके इंक्रीज होने की कोई क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है वो कम ज़्यादा होती है, तो जो स्पॉट प्राइस है इस वक्त स्पॉट प्राइस आपके पास 1.20 डॉलर्स पर स्क्वायर फुट है। इसके इंक्रीज, इसकी प्राइस की इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है इट कैन ग्रो अप टू 10% के जी ये जो 1.20 है जो इस वक्त स्पॉट मार्केट की प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो सकती है 10%, और इस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यू हैव 50% चांसेस कि जी ये हो सकता है। इसी तरीके से ये जो अभी प्राइस है 1.20 इसकी 10% डिक्रीज भी हो सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज अबाउट 50% प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। आप जो रेवेन्यूज कमा रही है ट्रिप लॉजिस्टिक्स, अगर वो एक यूनिट ऑफ डिमांड को पूरी करती है तो वो 1.22 पर यूनिट ऑफ डिमांड पे $1.22 पर यूनिट ऑफ डिमांड पे कमा रही है रेवेन्यूज। और आपको पता है कि जी रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी का वही पुरानी प्रॉब्लम की तरह 10% है या 0.1 है। अब देखें लीज प्राइस के अंदर हमने अनसर्टेनिटी क्यों नहीं डाली? क्यों? जब आप 3 साल की लीज लोगे तो यू विल हैव टू डिफाइन अ प्राइस के जी इस प्राइस पे हम लेंगे, 3 साल तक हम इस प्राइस पे ले लेते हैं। तो उसमें फिर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो उस प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। फ्लक्चुएशन स्पॉट मार्केट के अंदर आ सकती है क्योंकि प्राइसेस कैन गो अप एंड डाउन। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक फिक्स प्राइस का तो वो फिक्स प्राइस उसी पर रहेगी, इसलिए हमने इसमें प्रोबेबिलिटीज नहीं देखी। अब इसका डिसीजन ट्री कैसे बनेगा? अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो उनके पास डिसीजन जो ट्रिप लॉजिस्टिक्स ने लेना है, क्या हम स्पेस को स्पॉट मार्केट से लें, क्या हम एक फिक्स्ड लीज ले लें, और अगर हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं तो हम वो स्पॉट मार्केट से ले सकते हैं। या तो तीसरा ऑप्शन है कि जी फ्लेक्सिबल लीज ले लेते हैं, कि जी फ्लेक्सिबल क्वांटिटी की लीज ले लेते हैं, उसके कोई मिनिमम चार्जेस दे देंगे और फिर उसके बाद अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पड़ी तो हम स्पॉट मार्केट से ले लेंगे। अब आपकी पहली प्रॉब्लम जो है कि जी प्रॉब्लम के जो जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसका डिसीजन ट्री बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जी डिसीजन ट्री जो होता है दैट इज़ अ ग्राफिकल, अगर पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो इट्स अ ग्राफिकल डिवाइस टू टेक अनसर्टेनिटी इनटू कंसिडरेशन। ये प्रोसेस है इसका, आपने आइडेंटिफाई करना है ड्यूरेशन ऑफ ईच टाइम पीरियड। अब हमारे पास जो पूरा जो डिसीजन है इट कंप्राइजेज ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तीन टाइम पीरियड्स में है कि जी ओवर दी टाइम पीरियड हमने 3 साल तक कंसिडर करना है। तो उसके अंदर आज का दिन 1 साल, दूसरा साल, ठीक है। तो 3 टाइम पीरियड्स इसके अंदर आ गए। आज का टाइम पीरियड, अभी, अगले साल 2 साल और ये 3 टाइम पीरियड्स हमारे पास आ गए हैं इसके अंदर। जो दूसरा उसके अंदर बात थी कि जी आइडेंटिफाई फैक्टर्स हुज फ्लक्चुएशन विल बी कंसिडर्ड। आप इसके अंदर देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपको पता है कि जी डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, डिमांड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। आपकी जो प्राइस है, जो मार्केट स्पॉट प्राइस है, उसके अंदर जो है वो कमी या ज़्यादती हो सकती है। तो यहाँ 2 फैक्टर्स हैं, डिमांड के और प्राइस के, जिनके अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो अब आप देखें हमने ये दोनों फैक्टर्स इधर से शो कर लिए हैं कि जी प्राइस कितनी है और डिमांड कितनी है। तीसरी चीज जो उसमें बताई गई थी, आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर ईच फैक्टर्स। अब आपने पहले आइडेंटिफाई कर ली किन चीज़ों के अंदर फ्लक्चुएशन है, अब आपने क्वांटिफाई करना है कि जी कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये क्वांटिफिकेशन आपको प्रॉब्लम के अंदर मिल गई है कि डिमांड के अंदर 20% इंक्रीज हो सकता है, 20% डिक्रीज हो सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी साथ दी हुई है। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कंपनी का है। अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी रिप्रेजेंट द डिसीजन ट्री विद डिफाइंड स्टेट इन ईच पीरियड एज वेल एज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द स्टेट्स इन सक्सेसिव पीरियड्स। अब इसके अंदर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कैसे आइडेंटिफाई होंगी, हमने बता दिए कि जी किन फैक्टर्स के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, हमने ये बता दिया कि कितने % फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज बनानी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज किस तरह बन सकते हैं। आपका आज के दिन जो डिमांड है दैट इज 100,000 यूनिट्स की। आज के दिन अगर आप स्पॉट मार्केट से कोई भी फैसिलिटी लेते हो, वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी को ख़रीदते हो, तो आपको पर स्क्वायर फुट जो है 1 साल के लिए $1.2 का पड़ रहा है,
ठीक है। अब इसके अंदर ये आज का दिन है, तो एक साल के बाद उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, डिमांड के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। कितनी % इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है? 20% इंक्रीज हो सकती है या 20% डिक्रीज हो सकती है। और इस इंक्रीज और डिक्रीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। बढ़ेगी तो उसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है, कम होगी तो उसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है। लेट्स से इसी तरह से जो आपकी प्राइस है उसके अंदर भी इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो 10% का एक्सपेक्टेड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना है? 50-50 कि जी 50% चांसेस है कि वो बढ़ जाए, 50% चांसेस है कि वो कम हो जाए। तो अब देखें डिमांड लेट से 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब 20% बढ़ेगी तो वो कितनी होगी? 100,000 यूनिट्स का जब 20% आप करते हो, इसको मल्टीप्लाई 0.20 करोगे तो आपके पास आ जाएगी 20,000 यूनिट, और तो 100 प्लस 20 आप जब करोगे तो वो 120,000 यूनिट्स बन जाएंगी। अगर डिमांड 20% बढ़ेगी तो अगले साल कितनी डिमांड होगी? 120 यूनिट्स, 120,000 यूनिट्स की। तो ये डिमांड हमने इधर कर ली। अब जो आपकी जो प्राइस है स्पॉट मार्केट में वो भी बढ़ जाए, स्पॉट मार्केट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाए। कितनी बढ़ेगी? 10% बढ़ेगी। तो यहाँ प्राइस 1.20 है, तो जब हम 1.20 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? दैट विल बी अबाउट 0.12। तो 1.20 प्लस 0.12 which will be equal to 231.32। तो ये जो आपकी प्राइस है जब 10% बढ़ेगी तो इतनी पे आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों चीजें हो रही हैं कि डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है। तो अब यहां हमने 0.25 क्या लिखा हुआ है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%, तो हम 0.5 लिख देते हैं। इसी तरह प्राइस बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज अबाउट 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट इज 0.25 कि जी ये आउटकम निकलने की ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमने बता दी। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था ना, ये जो एरोज हैं सारे के सारे दे रिप्रेजेंट दी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि जी इस स्टेट से अगली स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इधर तो आप खड़े हुए हो, एट दिस स्टेज यू आर एट टाइम 0, आपकी डिमांड इतनी है, आपकी प्राइस इतनी है स्पॉट मार्केट की। अब एक आउटकम होती है कि जी डिमांड भी बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए, तो फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इस स्टेज से इस स्टेज पे जाने की कितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं? देखें, डिमांड भी बढ़ जाए आपकी और आपकी प्राइस भी बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए और आपकी प्राइस जो है वो कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए और प्राइस आपकी बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए और प्राइस भी आपकी कम हो जाए। और तो कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है ना, यही हो सकता है ना। तो ये इसीलिए ये 4 चीजें लिखी हुई हैं इधर कि जी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज 4 लिखी हुई हैं। डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, तो दैट विल बी अबाउट 0.25। डिमांड बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5। प्राइस कम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.5। इसी तरीके से डिमांड कम होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, प्राइस बढ़ने की 0.5, डिमांड कम होने की 0.5 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कम होने की 0.5। तो ये सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी 0.25, 0.25, 0.25। अब इन सारों में से कुछ ना कुछ होना है, इसीलिए आप जब इन सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को एड अप करोगे तो इट विल ऑलवेज बी 1, 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। जब आप इसको एड अप करोगे तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इन चारों आउटकम में से कोई ना कोई आउटकम निकलेगी, उसका मतलब है कि जी 100% सर्टेनिटी है कि जी इन चारों आउटकम में से कोई ना कोई आउटकम निकले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जी और क्या पॉसिबल दूसरे टाइम पीरियड में। अब इस जगह पे आप पहुंच गए, पहले टाइम पीरियड में आप गए, दिस इज द 0 टाइम,
इस जगह पे ये सिचुएशन है, अगले टाइम पीरियड पे गए तो ये सिचुएशन है, ये 4 सिचुएशंस हमने बना ली। अब उससे अगले टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो प्राइस बढ़ेगी, या तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी, या तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होगी, डिमांड कम होगी प्राइस कम होगी, डिमांड कम होगी और प्राइस भी कम होगी। तो यही चारों आउटकम फिर आगे बनना शुरू हो जाएंगी। आपकी बुक के अंदर जो है और इस स्लाइड के अंदर भी जो टेबल बना हुआ है, ये ज़रा समराइज होके बना हुआ है। अगर आपने इसको ज़्यादा डिटेल में बनाना है तो मैं आपको इधर बना देता हूँ कि जी टाइम 0, टाइम 1 एंड टाइम 2। टाइम 0 पे क्या है, आपकी एक डिमांड है और आपकी एक प्राइस है, ठीक है। इसकी 4 आउटकम्स क्या है, डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, ठीक है। तो एक आउटकम ऐसे बन जाएगी। दूसरी आउटकम क्या बनेगी, डिमांड बढ़े प्राइस कम हो जाए, ठीक है। तो वो एक ऐसे बना देंगे हम। इसी तरह तीसरी डिमांड कम हो और प्राइस बढ़ जाए, तो वो एक आउटकम बन जाएगी। इसी तरीके से डिमांड कम हो और प्राइस भी कम हो जाए, तो एक और आउटकम आपके पास ये आ गई। फिर हम इसको और बना सकते हैं कि जी डिमांड बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए और प्राइस कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए और प्राइस बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए और प्राइस भी कम हो जाए। तो ये 4 आउटकम्स और निकलेंगी फिर इस स्टेज से, ठीक है। 1 2 3 4, ये हर उसके लिए हम फिर 4 बना सकते हैं, क्योंकि यही 4 आउटकम्स बननी है। तो आपकी बुक के अंदर उनको समराइज कर दिया गया, इसलिए आप देख रहे हो कि कम सेकंड स्टेज के अंदर ज़रा कम है, मगर इसको आप खोल के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, एक आउटकम हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाए, दूसरी आउटकम है डिमांड कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए। तीसरी आउटकम डिमांड कम हो जाए और प्राइस भी कम हो जाए। तो यही 4 देखें आप, इससे भी बना सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी यही 4 जो हम अभी तक देख रहे हैं, तो यही 4 इनका एक सेट इधर आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी जो 4 हैं आउटकम्स, वो एक सेट हम इसका इधर भी लगा सकते हैं। तो इसलिए आपकी बुक के अंदर वो 16 आउटकम्स नहीं शो की हुई उन्होंने, क्योंकि यही आउटकम्स की डुप्लीकेशन हो रही है, तो बुक के अंदर समराइज करके ज़रा कम करके 2 3 आउटकम्स उसके अंदर शो कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का अगर आपको याद हो इसका प्रोसीजर, उसके अंदर लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग एट टाइम t वर्क बैक टूवर्ड्स टाइम पीरियड 0। अब डिसीजन ट्री जो है उसको जब सॉल्व किया जाता है, वो आखिरी पॉइंट से जो टाइम t है कि जी कितने आखिरी टाइम पीरियड है, उससे फर्स्ट टाइम पीरियड की तरफ, यानी इस टाइम पीरियड की तरफ आया जाएगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इधर आओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर आप पीछे वापस टाइम पीरियड 1 पे आओगे। तो अब हम देखना है कि जी जो ये आउटकम है इनकी व्हाट इज़ द मीन एक्सपेक्टेड आउटकम। अब यहाँ आपके पास सारी जो है ना अनसर्टेनिटी बना दी गई है, जो जितनी भी अनसर्टेनिटी है वो हमने मॉडल कर ली। हमने बता दी कि जी पॉसिबल स्टेट्स सारी की सारी क्या है, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, वो सारी आउटकम्स हमने बता दी। हमने उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ बता दी कि जी इनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके अंदर भी हमने सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ बता दी हैं। सारों की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमेशा एडअप होके 1 हो जाएंगी। तो सारी की सारी हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ बता दी हैं एंड पॉसिबल आउटकम्स भी बता दिए हैं। अब हमने इस डिसीजन ट्री को सॉल्व करना है। डिसीजन ट्री को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेट्स सी। We have to analyze the option of not signing a lease and using the spot market. तो हम पहले वाला ऑप्शन देखते हैं कि जी हम अगर लीज ना साइन करें और हम अपनी सारी जो वेयर हाउसिंग की डिमांड है वो स्पॉट मार्केट से लें। तो अब ये हमने बना लिया उसका डिसीजन ट्री। अब हम डिसीजन ट्री को सॉल्व करते हैं। क्यों? ये सारी के सारा जो डिसीजन ट्री है ये इसी ऑप्शन को
एनालाइज करने के लिए बनाया गया है ना, कि अगर हम अपनी सारी की सारी डिमांड को स्पॉट मार्केट से कवर करें। हमें पता है कि जी डिमांड के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, हमें पता है स्पॉट मार्केट के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, और वो वेरिएशन को हमने डिसीजन ट्री के अंदर डाल दिया है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज भी डाल दी, डिमांड भी डाल दी, प्राइस भी डाल दी, उसकी कमी ज्यादती होना, वो सारी फ्लक्चुएशन हमने डिसीजन ट्री के अंदर मॉडल कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना अच्छा खासा कैलकुलेशन इंटेंसिव काम है। आपको इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि आज तो हम हाथ से सॉल्व करेंगे, मगर नॉर्मली ये चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर भी बड़े इजीली मॉडल करके उनसे निकाल सकते हैं, आउटकम्स निकाल सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताए थे। दे कैन बी वेरी इजीली यूज टू मॉडल डिसीजन ट्रीज, और उनसे आउटकम निकाली जा सकती है। चलें, अब हम क्योंकि अब हम एनालाइज कर रहे हैं उस ऑप्शन को जिसके अंदर हमने लीज साइन नहीं करनी, और हमने सारी की सारी जो कैपेसिटी है अपनी वो हमने स्पॉट मार्केट से लेनी है। अब जाहिर बात है डिसीजन ट्री को जब सॉल्व किया जाएगा तो आखिरी टाइम पीरियड से शुरू के टाइम पीरियड पे लाया जाएगा। तो अब हमारे पास आखिरी टाइम पीरियड अगर हम देखें तो आपके पास एक पॉइंट है जहां डिमांड 144 है और जो प्राइस है वो 1.45 है पीरियड 2 के अंदर। ये देखें कि जी ये तो पीरियड 0 था, ये पीरियड 1 था, और ये पीरियड 2 है। पीरियड 2 में क्या हुआ, इसके अंदर इधर हमारी डिमांड बढ़ गई थी और प्राइस भी बढ़ी थी। फिर उसकी एक आउटकम कि जी डिमांड भी बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए, तो फिर उसकी क्या आउटकम है, तो वो ये वाली आउटकम है। हम इसको सॉल्व करते हैं कि जी इससे हमारे पास एट दिस स्टेज अगर हम ऑपरेट करते हैं अपना बिजनेस और डिमांड भी बढ़ जाए और प्राइस भी हमारी स्पॉट मार्केट में बढ़ जाए, तो हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। वो किस तरह से निकाला जा सकेगा, उसकी सारी कॉस्ट हम निकालेंगे और उसके हम प्रॉफिट निकालेंगे। हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अगर हमारे पास इतनी डिमांड है, 144,000 की डिमांड है, और हमें स्पॉट मार्केट में 1.45 के लिए $1.45 पर स्क्वायर फुट पर ईयर की प्राइस मिलेगी, तो हमारे पास जो टोटल हमारा खर्चा होगा वो इतना होगा $208,800। इस डिमांड को केटर करने के लिए फ्रॉम स्पॉट मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 1.45 हमारे पास इतनी कॉस्ट हमें लगेगी। अब हमारे पास उसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारे पास देखें हमने लिख दिया कि जी व्हेन डिमांड इज 144, प्राइस इज 1.45 एट टाइम पीरियड 2। तो यहाँ भी हमने कॉस्ट निकाल ली है, डिमांड 144 एट प्राइस ऑफ 1.45 एट टाइम पीरियड 2। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि जी जितनी आपकी कॉस्ट होती है और जितने आपके रेवेन्यूज होते हैं, जितने रेवेन्यूज हैं उनमें से जब आप कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स आते हैं, यही होता है ना। तो आपकी जो इसके अंदर रेवेन्यूज हैं 144,000 यूनिट्स को आपने केटर करना है। हर यूनिट को केटर करने के लिए आपको $1.22 मिलते हैं, और आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमने यहाँ निकाल दी है। तो 144 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 1.22 करेंगे तो वो $175,000 हमें उस महीने में रेवेन्यू होगा, उस टाइम पीरियड में, सेकेंड टाइम पीरियड में रेवेन्यू होगा, और हमारा जो टोटल कॉस्ट होगी इतनी। तो इस आउटकम में हमें जब आपकी डिमांड भी बढ़ रही है और आपकी प्राइस भी बढ़ रही है सेकेंड टाइम पीरियड में, तो हमें इस इंस्टेंट पे व्हेन द डिमांड इज 144,000, प्राइस इज 1.45, द प्राइस ऑफ स्पॉट मार्केट इज 1.45 एट टाइम पीरियड 2, हमें नुकसान होगा 133 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस जगह पे अगर ये वाली आउटकम निकल रही है, ये वाली आउटकम अगर निकल रही है, तो हमारा जो नुकसान होगा वो माइनस 33,120 का होगा। तो 120, तो इस स्टेज पे हमारे पास ये नुकसान निकल रहा। अब इसी तरीके से जाहिरी बात है ये एक आउटकम निकली है टाइम पीरियड 2 की, जहां डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है। हमारे पास रेवेन्यूज कितने होंगे, हमारे पास
कॉस्ट कितनी होगी या उसको हमारे पैसे कितने लगेंगे, हमें फ़ायदा कितना होगा और हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो अब ये हमने सारी आउटकम्स के लिए निकाल लिया है। अब बाकी आउटकम्स क्या है कि जी अगर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए और आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाए, ठीक है। इस पॉसिबल सिनेरियो में ये डायग्राम में यहाँ ये हो रहा है, ये वाली पॉसिबल सिनेरियो है। इस पॉसिबल सिनेरियो में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ कितने होंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ इतने होंगे, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी और हमें उस जगह पे प्रॉफिट, उस स्टेट के अंदर प्रॉफिट क्या होगा, वो हमारे पास ये है। अब इसी तरीके से लेट से डिमांड बढ़ी हुई है और प्राइस और कम हो गई, ये वाली आउटकम हमारे पास आ रही है, ये वाली आउटकम हमारे पास आ रही है। प्राइस आई थिंक प्राइस इज अबाउट 0.97, तो ये वाली आउटकम हम देख रहे हैं। तो इस वाली आउटकम में हमारे पास कितना फ़ायदा होगा, उसी तरीके से जितनी आउटकम्स हैं सारी की सारी आउटकम्स को हमने इसके अंदर उनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। अगर डिमांड आपकी 144 होगी और प्राइस इतनी होगी 1.45, तो आपके प्रॉफिट्स इतने होंगे। अगर डिमांड 144 है और प्राइस 1.19 होगी तो आपको 4300 का फ़ायदा होगा। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है 144,000 एंड प्राइस 0.97 है तो आपको 36,000 का फ़ायदा होगा। इसी तरीके से डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जो हैं हमने निकाल लिए हैं। हमें ये सारी आउटकम्स निकालनी है 4 4 4 4 4 16। हमें टाइम पीरियड 2 के लिए 16 आउटकम्स निकालनी है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर यहाँ जो है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउटकम्स निकाली हुई हैं। 9 आउटकम्स इसलिए निकाली हुई हैं कि जी 16 के अंदर बहुत सारी रेपिटेशन होगी। जब आप वो निकालोगे, आप सारी 16 आउटकम्स की निकाल लो, आप देखोगे आखिर में आपका आंसर यही होगा। क्यों रेपिटेशन हो रही है, तो बुक में जो रेपिटेटिव वैल्यूज़ हैं वो उन्होंने नहीं लिखी हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 9 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उनका लिख दिया, बाकी जो रेपिटेशन हो रही है उनके इसी तरीके से वही आंसर निकलने हैं। तो अब हमने जब फेज 2 जो है, ये जो पीरियड 2 है, इसकी इंडिविजुअल आउटकम्स निकालनी है। अब हमने इसको टाइम पीरियड 1 पे जाना है कि जी टाइम पीरियड 2 की सारी हमने पॉसिबल आउटकम्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने टाइम पीरियड 1 की पॉसिबल आउटकम्स को कैलकुलेट करना है। तो वो अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जब भी डिसीजन ट्री को हमने सॉल्व करना है, ये देखें ये जो टाइम पीरियड 2 था और ये टाइम पीरियड 1 है और ये टाइम पीरियड 0 है। अब हमने आउटकम्स निकाल ली हैं, ये सारी की सारी आउटकम्स हमने निकाल ली हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ये शो हो रही हैं ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ वो उनकी भी वैल्यू 0.5 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 0.25 सारी ट्रांजिशन वैल्यूज़ जो है वो हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं। अब इधर वो वाला कॉन्सेप्ट आता है एमपीवी का, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, कि जी जब आप जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने हैं, जो टाइम पीरियड 2 के अंदर कैश फ्लो आना है, उसको हम इस टाइम में किस तरीके से दी टाइम पीरियड 1 की जो वैल्यू है उसमें किस तरीके से लाएं। तो वहाँ ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट एमपीवी का कॉन्सेप्ट हम इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए एमपीवी मैंने आपको डिसीजन ट्री पढ़ाने से पहले डिस्कस किया था। अब हमारे पास सारी आउटकम्स निकल आई हैं टाइम पीरियड 2 की। ये जो 4 आउटकम हमने निकाली हुई हैं, अब हमने इनकी एक मीन आउटकम निकालनी है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट्स हमने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं 4 आउटकम के। अब इनका एक हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट निकालना है। मीन प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह से इसका निकलेगा कि जी इस जगह पे इस आउटकम की
प्रॉफिट कितना है और इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उससे हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलता है। तो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, क्योंकि ये 4 आउटकम्स हैं, इन 4 आउटकम्स सारों की 0.25 प्रोबेबिलिटी है, तो हम बाहर ही एक लगा लेते हैं कि जी इस आउटकम की ये वाली आउटकम जहां आपकी डिमांड भी बढ़ी है और प्राइस भी बढ़ी है, उसमें आपका क्या प्रॉफिट है। ये वाली आउटकम जहां डिमांड भी बढ़ी है और प्राइस कम हो रही है, उसमें आपकी क्या प्रॉफिट है। ये वाली आउटकम जहां डिमांड कम हो रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसमें क्या आउटकम है, इसमें क्या प्रॉफिट है। और ये वाली आउटकम जहां डिमांड कम हो रही है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है, इसमें क्या प्रॉफिट है, और इनकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो वो अब देखें, हम इधर सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट at each node in time period is the profit during the period 1 plus the present value of the expected profit in time period 2। ठीक है, तो present value of the expected profit of time period 2, expected profit EP at node is the expected profit over all 4 nodes in the time period 2 that may result from this node। अब आपने जो expected profit निकालना है, वो आपने उन सारी आउटकम्स की मीन आउटकम क्या या मीन प्रॉफिट जो आपने निकालना है, वो उन सारी आउटकम्स को कंसिडर करके निकालना है। present value of the expected profit is the present value of its expected profit, and the total expected profit is the sum of profit in time period and the present value of the expected profit in time period 2। इसको हम देखते हैं कि जी सिंपल सा है कि जब आपने टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1 एंड टाइम पीरियड 2, ठीक है, टाइम पीरियड 2 के अंदर जो 4 प्रॉफिट्स निकले हैं, उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा। उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, लेट्स से कि जी हम इन आउटकम्स को देखते हैं। जब आपकी डिमांड 144 थी, और प्राइस जो थी 1.45 थी। इसी तरह डिमांड 144 थी और प्राइस 1.19 थी। जब डिमांड आपके पास 96 थी और प्राइस जो थी 1.45 थी। जब आपके पास डिमांड 96 थी और प्राइस जो थी 1.19 थी। इनके जो प्रॉफिट्स निकले थे वो कितने निकले थे, इसमें प्रॉफिट आपके पास -33,120 का निकला था। इसी तरीके से इसके अंदर आपके पास 4,320 का निकला था। इसके अंदर हमारे पास 96 के अंदर हमारे पास जो था वो -22,080 का निकला था। इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा था उसमें हमें फ़ायदा 2,880 रुपीस का। ये 4 आउटकम्स है ना, ये आपके टाइम 0 पे 1 है, टाइम 2 पे आपके पास 4 है, और टाइम 3 पे आपके पास टाइम 1 पे आपके पास 4 है, और टाइम 2 पे आपके पास 16 आउटकम्स निकलनी चाहिए। तो वो इस तरीके से हम शो कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएंगी, और ये जो आखिरी हैं 4, इनको हम ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। ये आउटकम्स है ना, ये ओवरऑल आपका डिसीजन ट्री बन रहा है। अब इस केस के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो सारी की सारी 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25 है, ठीक है। तो अब हमने किस तरीके से आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। अब हमने जो ये फ्यूचर के कैश फ्लो है ना, ये कैश फ्लो दूसरे साल के एंड में आएंगे ना, तो ये फ्यूचर के कैश फ्लो है, उनको हमने टाइम 1 में लाना है। तो वो हम किस तरह से लाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जी हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इस पे निकालेंगे, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा कि जी हम इन सारी वैल्यूज को एड अप करेंगे,
ठीक है। इन सारी वैल्यूज को जब हम एडअप करेंगे और उनको मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर देंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जी हम 0.25 को मल्टीप्लाई कर दें -33,120 प्लस हम इनको इंडिविजुअली इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4,320 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय -22,080 प्लस 0.25 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2880। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इन सारों को एडअप करके उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से। ये इसलिए किया है क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज इनकी सिमिलर है। कभी कभी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो तो हम ये वाला फार्मूला, इट इज़ मच सेफर कि जी हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एक जितनी है, इसलिए हमने सारों को एडअप करके उसे 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। मगर जब नहीं होंगी तो फिर हमें ऊपर वाला जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि जी इंडिविजुअल आउटकम को उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और सारों को एडअप करना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस स्टेज में जो भी टाइम 2 पीरियड में जो भी आउटकम निकलने लगी है वो उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम या उसकी जो मीन आउटकम है कि जी आपको इसमें $12,000 का नुकसान होगा। इनमें से इन सारी चीजों को अंडर कंसिडरेशन रखने के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आई है वो -12,000 की आई है। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है इन 4 आउटकम्स को अंडर कंसिडरेशन रखने के बाद, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आया है दैट इज -12,000। ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अब आपके पास -12,000 आया। अब हमने इस -12,000 को टाइम पीरियड 1 में लाना है। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ये इसकी डिस्काउंटिंग करनी है हमने, जो हमने एमपीवी में देखी थी। तो ये जो -12,000 हमारी जेब से निकल रहा है दूसरे साल के एंड में, उसको अब हमने पहले साल के एंड में ला के देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे, इस आउटकम का प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ आउटकम क्या है कि जी डिमांड जो है आपकी 120 हो और आपकी जो प्राइस है दैट इज अबाउट 1.32। ठीक है, ये आपकी स्पॉट मार्केट की प्राइस है। अब इसका हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका प्रॉफिट हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास जो प्रॉफिट इसका आएगा डिमांड एट 1 दिस, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो इट विल बी अबाउट 120 डिमांड है, 120,000 पे आप रेवेन्यू कितना कमा रहे हो, 122 रेवेन्यू कमा रहे हो। और जब आप इसमें से अपनी कॉस्ट को माइनस करोगे कि जी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.32, तो आपके पास इधर ऑलमोस्ट यू विल हैव 10,909 -10,000 का इस स्टेज पे जो है वो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है एट दिस स्टेज दैट इज अबाउट 10,909। ठीक है, तो इस जगह पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, इस जगह इस स्टेज का प्रॉफिट और जो फ्यूचर आउटकम्स में से जो प्रॉफिट आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो 10,000 प्लस हम कर लेंगे -10,909 प्लस हम इसके अंदर करेंगे ये जो -12,000 अगले साल के एंड में जो आना है उसकी हम डिस्काउंटिंग कर लेंगे 1.1। इधर आप देखें ये जो 1.1 है ये वो k की वैल्यू है जो प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है, 1 + k जो होता है वो उसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ आपके पास जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट एट दिस स्टेज विल बी the profit of the stage plus the present value of the expected profit। expected profit कितना था, वो 12,000 का नुकसान था।
दूसरे एंड में। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आपने करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी, वो -12,000 को जब हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे 1.1 से, तो इट विल बी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड, इसको अगर आप डिवाइड करें तो 1.1 से वो आप देख लेना क्या वैल्यू आती है, आई डोंट नो, मगर जो प्रॉब्लम के अंदर इसके अंदर जो जब आप इन दोनों का एड अप करते हैं दैट इज अबाउट -22,909। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था आपका टाइम 2 के एंड में, दैट वाज अबाउट -12,000, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस स्टेज में टाइम 1 में लाने के लिए आपको कितना पड़ा, दैट इज -12,000 डिवाइडेड बाय 1.1। तो इस स्टेज पे आपका टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा, इस स्टेज पे जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा दैट विल बी कि जी आपका इस स्टेज का प्रॉफिट कितना है प्लस जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टाइम 2 से जो आपके पास आने थे, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका प्रॉफिट क्या है, -10,000 का 909 प्लस आपने इसके अंदर वो जो एक्सपेक्टेड present value of the expected profit 12,000 divided by 1.1, ठीक है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो दैट विल बी अबाउट -22,909। तो इस स्टेज में जो प्रॉफिट यू कैन एक्सपेक्ट, अगर स्पॉट प्राइस डिमांड आपकी बढ़ जाती है इस केस के अंदर और उसकी जो स्पॉट प्राइस है वो भी बढ़ जाती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच। इसी तरह यही मेथडोलॉजी जब हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं स्टेजेस के लिए निकालेंगे, इसी तरीके से इन 4 स्टेजेस के हमारे पास प्रॉफिट्स निकलेंगे। हमने पहले आखिरी टाइम पीरियड पे सारे सॉल्व करने हैं, जो आखिरी टाइम पीरियड है उनकी सारी आउटकम्स की एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हमने प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, और जो पहली स्टेज है टाइम 1 की स्टेज है उनके प्रॉफिट निकालने हैं, और जो आगे से जो प्रॉफिट आ रहे हैं उनको हमने ऐड अप कर लेना है, और इसी तरीके से अब हमने यही प्रोसीजर फिर हमने वापस पीछे लेके जाना है। तो अभी तक हमने क्या प्रोसीजर किया कि जी टाइम 2 पीरियड के अंदर हमने क्या काम किया, हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाले। सबसे पहले हमने टाइम 2 पीरियड के अंदर इंडिविजुअल आउटकम्स के प्रॉफिट निकाले, फिर उनके हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाले। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह निकाला, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग के साथ उनको मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनको टाइम पीरियड 1 में लाने के लिए PVEP प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला। तो ये प्रोसेस हमने साथ साथ करना है। पहले हमने इस स्टेज, चारों स्टेजेस के प्रॉफिट्स निकालने हैं, उन प्रॉफिट्स की फिर हमने एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। वी विल मल्टीप्लाई दोज इंडिविजुअल प्रॉफिट्स विद दीज ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज, और इन प्रॉफिट्स को हमने प्रेजेंट इस टाइम पीरियड में लाने के लिए, टाइम पीरियड 1 में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम जब उनको इधर लाएंगे तो अब इंडिविजुअल स्टेजेस के हमें इस स्टेज पे हम प्रॉफिट निकालेंगे और हम उसको ऐड कर देंगे PVEP से। PVEP जो यहाँ से हमने निकाले हैं उस प्रॉफिट के अंदर हम PVEP निकालेंगे। इसी तरह हम इस स्टेज का प्रॉफिट निकालेंगे प्लस PVEP ऑफ ये जो इनकी 4 आउटकम्स है ना टाइम 2 में, उनको उसके साथ ऐड करेंगे। इसी तरह से हम इस आउटकम का प्रॉफिट निकालेंगे और PVEP का हम इन 4 स्टेजेस का PVEP निकालेंगे। इन 4 स्टेज का किस तरह से निकाला जाएगा प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से PVEP निकाला जाएगा। PVEP हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम K की वैल्यू इनकॉर्पोरेट करके निकालते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न होता है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम किस तरह से निकालते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ये जो एरोज हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम इसी तरह से प्रोसेस इन चारों के लिए करेंगे, टाइम पीरियड 1 के लिए जब ये चारों के प्रॉफिट निकलेंगे फिर हमने इनको टाइम पीरियड 0 पे लाना है। तो इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल उसमें कहा था एक्सप्लेनेशन के अंदर
के जो डिसीजन ट्रीज होते हैं दे लेट यू इनकॉर्पोरेट द अनसर्टेनिटी इन द प्रॉब्लम, मगर दे आर वेरी इंटेंसिव इन कैलकुलेशन इंटेंसिव। तो हमें हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी, हर आउटकम का जो हर पॉसिबल आउटकम है उसके जो प्रॉफिट्स हैं हम वो निकाल लेंगे और फिर हम उनको पीछे की तरफ लाना शुरू करेंगे। तो जितना बड़ा लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा स्टेजेस होंगी। कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम्स, अब जो बेसिक प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जरा उसकी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। फ्रॉम नोड जहाँ डिमांड 120 की है, प्राइस इतनी है, पीरियड 1 में देर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स इन पीरियड 2, वी हैव टू एवेल्युएट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द पीरियड 2 ओवर द 4 स्टेट्स। तो वो यही बात है कि जी हमने ये चीज़ कर ली है कि जो पीरियड 2 के अंदर 4 स्टेट्स हैं उनके हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने हैं। वो किस तरह से हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? जब डिमांड 120 होगी, प्राइस इतनी होगी, और टाइम पीरियड 1 में क्या होगा कि जी जब डिमांड 144 होगी, प्राइस इतनी होगी, टाइम पीरियड 2, प्लस जब डिमांड 144 प्राइस इतनी होगी टाइम पीरियड 2 में, जब डिमांड 96 होगी प्राइस इतनी होगी टाइम पीरियड 2 में। तो ये वही है जो उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि इधर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सारों की एक जितनी है तो इसलिए इन्हें एक दफ़ा ही 125 से कर लिया गया। मगर ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि जी आप हमेशा इसको ऐसे कर लें। इट इज़ मच मोर ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये वाला जो बुक वाला केस है इसके अंदर क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सारों की एक जितनी है तो इसलिए वो उनको 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0.25 से। सबसे अच्छा तरीका है कि जी आप इसको हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करें, इंडिविजुअल 1.45 एंड 2, ठीक है, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ डिमांड जब आपके पास 144 होगी, प्राइस जब आपके पास 1.19 होगी टाइम पीरियड 2 में, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय जब प्राइस आपके द प्रॉफिट व्हेन डिमांड इज अबाउट 96, when demand is about 96, price is about 1.19 and time period 2, plus 0.25 when the profit जो उधर आपका निकल रहा है डिमांड 0.96, प्राइस इज अबाउट 1.45 टाइम पीरियड 2। तो ये वाला फॉर्मूला इज मच बेटर। इस वाले को ये भी ठीक है मगर ये इस सिचुएशन के अंदर सही है। बाद में अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो जाएं डिसीजन ट्री के अंदर तो फिर हमें यही वाला फार्मूला जो मैंने लिखा है यही लगाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जी आप हर आउटकम को उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको एडअप करें। जब आप उसको एडअप करेंगे तो ये टाइम पीरियड 2 में जो हम पहले निकाल चुके हैं इस जगह पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसका इतना है, ठीक है। इन सारी आउटकम जो हैं ये 4 की 4 आउटकम्स जो हैं उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने अपने निकालना है, इसको ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में लाना है कि जी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन टाइम पीरियड 1 इज PVEP जब डिमांड इतनी होगी, प्राइस इतनी होगी और 1, यानी कि जब आपके पास जो टेबल है उसके अंदर जब डिमांड इतनी होगी उसकी प्राइस इतनी होगी, ये 4 जो आउटकम्स थी उनकी हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने उसको PVEP निकालना है, इस जगह पे लाना है। इस स्टेट से 4 आउटकम्स निकलनी थी ना, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब PVIP जब निकालेंगे तो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होंगे जब डिमांड 120 है, प्राइस इतनी है टाइम पीरियड 1 में, डिवाइडेड बाय उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी का, तो दैट इज अबाउट इतने। द टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट व्हेन डिमांड इज अबाउट 120, प्राइस इज 1.32 और टाइम पीरियड 1 में एट द नोड डिमांड इज दिस,
price is this in period 1 is the sum of profit at period 1 at this node plus the present value of the future expected. तो present value of the future expected profit जो है, तो इस जगह पे क्या प्रॉफिट होंगे, ये जो नोड है जहां डिमांड 120 है, प्राइस इतनी है टाइम पीरियड 1 के अंदर, उधर प्रॉफिट्स कितने होंगे, उधर प्रॉफिट वो होंगे जो उस नोड के प्रॉफिट हैं प्लस PVEP प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो फ्यूचर से आने हैं वो। तो उस नोट पे कितना प्रॉफिट होगा, उस पे इतना प्रॉफिट होगा, इतने का आपको हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट पड़ रहा है, इतने की आपको कॉस्ट पड़ रही है, प्लस जो PVEP है तो वो हमारे पास 22,909। तो यहाँ भी स्लाइड्स के अंदर भी इतना ही सॉल्व किया हुआ है जितना मैंने आपको इधर बताया। हर स्टेज के लिए आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके उनका फिर रेशो निकालना है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइम पीरियड 0 की तरफ। तो हमने टाइम पीरियड 1 तक सॉल्व कर लिया है डिसीजन ट्री। यहाँ तक ये जो 4 आउटकम्स हैं इसके लिए डिसीजन ट्री सॉल्व करना है। ये जो 4 आउटकम्स हैं उसके अंदर क्या निकलता है, दैट इज अबाउट, लेट मी राइट दिस डाउन हेयर। इस स्टेज पे आपके पास जो प्रॉफिट्स थे दे वर अबाउट 22,909। इस स्टेज पे जो थे दे वर अबाउट 32,073। इस स्टेज पे जो प्रॉफिट्स थे दे वर अबाउट -15,273 और इस स्टेज पे जो थे प्रॉफिट्स दे वर अबाउट 21,382। तो यही चीज़ आपकी बुक के टेबल के अंदर समराइज भी हुई है, टेबल नंबर 6.6 के अंदर समराइज हुई हुई है। अब हम टाइम पीरियड 0 को देखते हैं कि जी जब हम 1 से 0 की तरफ आते हैं तो वो कितना होगा, किस तरीके से आप ओवरऑल जो डिसीजन है वो सॉल्व किया जा सकता है। फॉर टाइम पीरियड 0 द टोटल प्रॉफिट इज द सम ऑफ प्रॉफिट इन period 0 and the present value of the expected profit from the 4 nodes in period 1। तो जो प्रॉफिट है एट टाइम 0 वो क्या होगा, उस स्टेज का टाइम 0 का जो प्रॉफिट है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम दी जो T1 स्टेज है उधर से। तो इसको जब हमने ये 4 आउटकम्स थी ना, उसके आगे तो बाकी 16 आउटकम्स थी, तो अब हम ये टाइम 0 वाली बात कर रहे हैं और टाइम 1 वाली बात कर रहे हैं। तो टाइम 0 पे जो प्रॉफिट होगा वो उस स्टेज का प्रॉफिट कितना है, और जो ये 4 स्टेजेस हैं इनसे जो एक्सपेक्टेड, इनकी एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा और फिर उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम PVEP कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और वो हमने इधर ला के डालना है। ठीक है, तो the expected profit when the demand is this, price is about 1.20 at time 0 is equal to the expected profit from the 4 stages, जो 4 स्टेजेस हैं उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हमने PVEP में कन्वर्ट करना है, और PVEP में जब कन्वर्ट होगा तो हम उसको स्टेज 1 पे लाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था इन 4 आउटकम का। ठीक है, इन 4 आउटकम का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम स्टेज T1। ठीक है, तो ये उसकी एक्सपेक्टेड थी। ये जो वैल्यू है ये आपको T1 जो था उसके PVEP बता रहा है। PVEP किस तरह से बता रहा है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग दी रेट ऑफ रिटर्न 1.1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट जो होगा एट T0 इट विल बी T0 का जो प्रॉफिट है प्लस PVEP T1 से जो आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जब आपका स्टेज T है, स्टेज T0, उस पे क्या आउटकम है कि जी डिमांड आपकी 100,000 की होगी,
और आपकी जो प्रॉफिट हैं दे आर अबाउट $1.20। ठीक है, तो अब हम इस जगह पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट व्हेन डिमांड इज 100, प्राइस इज दिस टाइम 0, तो 100,000 पे रेवेन्यू कितना है और कॉस्ट कितनी होगी आपकी? दैट इज अबाउट 100,000 पे 1.20 स्पॉट मार्केट में मिल रही है, प्लस PVEP हमने लानी है अगली स्टेज की, जिसको हम कहते हैं डिमांड 0, P1.20 N0। ठीक है, तो जो अगली स्टेज की PVIP आनी है, ये PVEP जो है वो हमारे पास आ गई अगली स्टेज से। इस स्टेज पे हमें कितना फायदा होगा? तो टोटल फायदा कीपिंग इन कंसिडरेशन द अनसर्टेनिटी, ऑल द अनसर्टेनिटी के जी 20% इंक्रीज हो सकता है, 20% डिक्रीज हो सकता है 10% प्राइस के अंदर, उस सारी चीज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो हमारा डिसीजन ट्री सॉल्व हुआ है वो हमें बता रहा है कि अगर आप फिक्स्ड स्पॉट मार्केट से अपनी कैपेसिटी को लेते हो, ठीक है, स्पॉट मार्केट के अंदर प्राइस वेरिएशन भी हो रही है, आपकी डिमांड के अंदर भी वेरिएशन आ रही है, तो कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल दीज रिस्क्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड प्राइस, अगर आप स्पॉट मार्केट से इन्वेंट्री को या कैपेसिटी को खरीदते हो तो आपका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी अबाउट $5,471 इन दी प्रेजेंट वैल्यू के आज के दिन में। अगर आप ये सारा काम करते हो, आप अगले 3 साल तक बिजनेस को स्पॉट मार्केट की कैपेसिटी पे चलाते हो तो आपको इतना फायदा होगा, विच इज अबाउट 5,471। ठीक है, ये एक सिचुएशन थी हमारी, अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। हमने प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल सिचुएशंस देखनी है कि जी स्पॉट मार्केट से ले लें, लीज ले लें, फ्लेक्सिबल लीज कर लें, तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। कि हमारे पास अभी प्रॉब्लम का पहला पार्ट ख़त्म हुआ जिस पे हमने निकाली है कि जी अगर कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल दी अनसर्टेनिटीज़, तो जो स्पॉट मार्केट वाला ऑप्शन है उसमें हमें क्या फ़ायदा नुकसान होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम और ऑप्शंस को देखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर